Hello students, good morning all of you. Dear students, so let's start the class. We are going to continue the chapter separation of substances. So dear students, we have learned that many of the substances in our daily life are mixtures. So there is a need of separation of the components of mixtures, okay, when it is necessary. So we have talked that we can separate the mixtures of components of the mixture by hand picking, by threshing, by winnowing and by sieving. Okay. So here students, what happened? If we mix sand into water, if we mix rice into water, if we mix dal into water, what happens? These substances, that means ki sand, rice and dal, can dissolve in water? No, cannot. Rice solid particles, sand and rice cannot mix, cannot dissolve in water because these are insoluble solid materials. Okay, so the materials that you have learned in the previous chapter, that the materials that cannot mix in water, cannot dissolve in water, are called insoluble, and the substances or the materials that can dissolve in water are called soluble materials. Okay, so the sand, rice are the insoluble materials that cannot dissolve in water. Okay, so if these two substances, water and sand, can mix together, so how can we separate this insoluble particles of sand from water or liquid? Okay, so what happens? How can we separate? Okay, so dear students, so today we are going to talk about the separation of substances from liquids. Okay, so liquids में से हम substances को कैसे separate करेंगे, आज हम ये पढ़ने वाले हैं. Okay, so we will talk about sedimentation, decantation, filtration and evaporation. Okay, so let's start. So dear students, if we mix sand into water, okay, so how can we separate? We can leave the mixtures of sand and water for some time. Okay, so after some time, the sand, that is the insoluble particles, can settle down at the bottom of the bottom of the glass or whatever you have taken. Okay, so the settling down of solid insoluble particles at the bottom of the container or mixture. Okay, so this is called the sedimentation. Okay, same like if we take one अगर हम soil ले लेते हैं, ठीक है, so if we mix this soil in water, so it seems like it's mixed together, but if we leave the sand, a mixture of soil and water, then we can see कि sand can sedimented at the bottom of the bottle or jar. Okay, so जो सबस्टेंस सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर की जो सेटल डाउन, जो नीचे बैठे हुए जो बॉटम पे जो भी सबस्टेंसेस इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनको सेडिमेंट बोलते हैं. एंड जिस प्रोसेस से हम इसको करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. ठीक है, जब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम उसके बेस पे लेके जाते हैं, तो ये आपका सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है. ठीक है, अब हम अलग कैसे करेंगे? सेडिमेंटेशन में जो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए हैं और वाटर या जो लिक्विड होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. ठीक है, आप देख सकते हो. सो अब हम इसको सेपरेट कैसे करें? तो जेंटली हम क्या करेंगे, जेंटली हम इस वाटर को जो पोर करेंगे दूसरे कंटेनर में. ठीक है, बिना किसी बिना भी कोई डिस्टर्ब किए हुए हम धीरे से क्या करेंगे, वाटर को दूसरे बॉटल में, दूसरे कंटेनर में पोर करेंगे. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज decantation. Okay, so the pouring out of water from the mixture is called decantation. ठीक है, इसको बोलते हैं decantation. Now next है आपका अगर हम इसी, जैसे कि आपका सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर था, उसमें हमने और भी सैंड ऐड कर दिया. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग. सो लोडिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. तो जितना ऐड करेंगे वो जो भी सारा होगा, क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो तो आपके बॉटल में या फिर जो जार होता है उसके नीचे बैठ जाएंगे. ठीक है, सो द लोडिंग प्रोसेस जो है, इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल्स बाय सेटलिंग सेम केमिकल्स, बाय एडिंग सम केमिकल्स टू द मिक्सचर्स. ठीक है, तो उस मिक्सचर में हम उसको
जो पार्टिकल्स हम ऐड करेंगे वो आपका लोडिंग होगा, ठीक है। क्लियर? सेडिमेंटेशन, लोडिंग एंड डिकैंटेशन. नाउ there is another process that is filtration. Okay, so in filtration we use a filter paper to separate the mixtures of solid and liquid. ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में मिक्स है, उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्टरेशन भी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर अभी आपको लैब में मिलेगा, ठीक है। वो फिल्टर पेपर जो होते हैं वो हम एक जैसे कि हम जैसे कि चाय को हम नहीं, टी में से हम टी ग्रैन्यूल्स सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो जब चाय बनाते हैं तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, मिल्क, वाटर एंड शुगर ऐड करते हैं तो टी बनती है, ठीक है। लेकिन जब हम टी लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको फिल्टर करते हैं, यानी कि जो चाय की छन्नी हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें से हम पोर करेंगे तो जो लीव्स या ग्रैन्यूल्स होते हैं वो उस फिल्टर में या जो छन्नी होती है चाय की उसमें रह जाता है और हमारे पास जो है आपकी जो टी होती है वो बिल्कुल सही होती है, यानी कि फ्री ऑफ फ्री ग्रैन्यूल्स होगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन, जहाँ पे हम एक फिल्टर पेपर का या जो एक फिल्टर सबस्टेंस होता है उस मटेरियल उसका हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक फिल्टर पेपर हम उसमें लैब में यूज करते हैं, जो स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो वाटर में मिक्स होते हैं या लिक्विड में मिक्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। ओके, क्लियर? तो जो रेजिड्यू बचता है फिल्टर पेपर में, दिस इज कॉल्ड एज वो जो भी चीज फिल्टर पेपर में बच रही है वो रेजिड्यू होगा, और जो उसके बाहर निकल गई है दैट इज फिल्टरेट, ठीक है। तो टी इज फिल्टरेट एंड टी ग्रेन्यूल इज रेजिड्यू। ओके, वो बचे हुई चीज है उसको रेजिड्यू बोलते हैं, और जो पास हो गया वो आपका फिल्टरेट है, ठीक है। क्लियर है ना? अब एक और चीज है कि अगर हमने तो लिक्विड में सॉलिड मिक्स किया था, वो भी इनसॉल्युबल सॉलिड था, ठीक है। अगर इसमें सॉल्युबल सॉलिड हम ऐड कर दें वाटर में, ठीक है, लाइक इफ वी ऐड salt in water, if we add sugar in water, what happens, it totally dissolve in water, ठीक है। तो वो क्या होगा, पूरी तरह से वाटर में मिक्स होगा। अगर हम थोड़ा सा 1 टीस्पून हमने ऐड किया है 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो पूरा मिक्स हो जाएगा, कहीं भी आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज वो पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं। इसका क्या मतलब है कि वो अब गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, कहीं दिखेगा ही नहीं। क्या हम उसको वापस से नहीं पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें उस मिक्सचर में से, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर में से, सॉल्यूशन में से हमने क्या करना है, अगर सॉल्ट को अलग करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरी सेपरेशन टेक्निक है, दैट इज इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन में अब क्या करते हैं कि वो जो जिस कंटेनर, एक कंटेनर में वाटर लेना है उसमें आपको सॉल्ट मिक्स करना है, उस सॉल्यूशन को क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। तो हीट करेंगे तो जो वाटर, हीट का प्रोसेस, हीट करने पे वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो इवेपोरेशन इज द कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, ठीक है। वाटर को उसके वेपर में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, उस कंटेनर में वाटर जो है जब उसको गर्म करेंगे तो जो वाटर है वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ता चला, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो वो तो वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो सॉल्ट है, ठीक है, जो सॉल्युबल सॉल्ट है वाटर में, वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट नहीं होता है, वो उसके बॉटम पे बैठ जाएगा, और लास्ट में आप देखोगे कि सारा वाटर जो है इवेपोरेट होने के बाद उसमें व्हाइट सा आपको सॉल्ट दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो है आपका इवेपोरेशन है, और इसका यूज किया जाता है जैसे कि आपके सी वाटर है, ठीक है, समुद्र का पानी, बोलते हैं खारा होता है। खारा मतलब उसके अंदर सॉल्ट है, ठीक है, तो सॉल्टी वाटर होता है सी वाटर। उसमें क्या होता है, आपके सॉल्ट ऐड होते हैं, तो सॉल्ट में ये नमक, ठीक है, उसके बाद दूसरे सॉल्ट भी उसमें होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो नमक हमारे घर में आता है, ठीक है, वो हमें आपके समुद्र से ही मिलता है, और उस नमक को हम कैसे लेते हैं, उस नमक को हम कैसे उस सी वाटर से अलग करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो लोग ये काम करते हैं वो एक शैलो, मतलब एक शैलो पिट्स बनाते हैं, गड्ढे छोटे छोटे से, बहुत गहरे नहीं, शैलो यानी कि थोड़ा सा उभरे हुए गड्ढे बनाते हैं, उसके अंदर सी वाटर जो है वो रखा रहता है काफी बड़े एरियाज में, ठीक है। और कंटिन्यूसली सनलाइट उस पर जब पड़ती है तो वाटर जो होता है वो हीटेड होता है, हीट होने से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। सारा वाटर इवेपोरेट होने के बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। एंड दिस सॉल्ट इज देन कि केमिकली प्रोसेस टू गेट द
सॉल्ट दैट वी यूज इन अवर हाउस, ठीक है। तो हम जो घरों में सॉल्ट यूज करते हैं उसको केमिकल प्रोसेस के से उसमें और जो इम्प्योरिटीज होती हैं या जो दूसरे सॉल्ट होते हैं उसको सेपरेट करके हमें फ्रेश जो होते हैं वो कॉमन सॉल्ट, जिसको NaCl इसका कॉमन जो है आपका केमिकल फॉर्मूला होता है, वो हमें मिलता है। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नाउ ये तो हो गए थे आपके इनसॉल्युबल सॉलिड को वाटर में मिक्स करना एंड सॉल्युबल सॉलिड को वाटर में मिक्स कर हो गए हैं, तो उसको कैसे अलग करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन इफ टू लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। अगर दो लिक्विड एक साथ मिक्स हो गए तो उनको हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है। लाइक अगर मिल्क वाटर में हमने मिल्क में वाटर ऐड कर दिया, तो क्या उसमें से वाटर अलग करेंगे? नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर दो लिक्विड हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ऑयल एंड वाटर, ये दोनों लिक्विड हैं, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके सेपरेशन टेक्निक जो होती है, जैसे कि दो तरीके से मिक्सचर बनते हैं, ठीक है, वाटर के दो लिक्विड के मिक्सचर बनते हैं व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। दो लिक्विड एक दूसरे मिक्स हो गए तो दीज आर कॉल्ड एज मिसिबल लिक्विड, उनको क्या बोलेंगे? मिसिबल लिक्विड्स। व्हेन टू लिक्विड्स आर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसको भी सेपरेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स, बट यू विल लर्न अबाउट दिस टेक्निक्स इन लेटर क्लास, ठीक है। बाद में आगे जाके आप पढ़ोगे कि मिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर कैन नॉट मिक्स टुगेदर, दीज आर कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स, और इमिसिबल लिक्विड्स को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे है? वो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं या इमिसिबल मिक्सचर्स और सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे, ठीक है। तो हाउ कैन वी सेपरेट द ऑयल फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो उसमें करते क्या है, यहाँ पे हम डीकैंटेशन का प्रोसेस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डीकैंटेशन का प्रोसेस होगा। कैसे कि आपने क्या किया, हाफ ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, उसमें आपने हाफ जो है उसको ऑयल ऐड किया, मिक्स करते हैं। थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे कि ऑयल की जो है पूरी लेयर ऊपर आ जाती है और वाटर नीचे हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि धीरे से जेंटली हम क्या करेंगे, उस ऑयल को जो ऊपर की तरफ आया उसको पोर करेंगे इन अनदर बीकर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऊपर जितना ऑयल है वो अलग कर लेते हैं और नीचे हमारा सिर्फ वाटर बच जाता है। तो pouring the liquid out from the container और बीकर is called decantation, ठीक है। तो जेंटली हम अगर उसको लिक्विड को दूसरे लिक्विड में चेंज कर रहे हैं या डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं decantation. Friends, I hope you all got it. Okay, sedimentation, decantation, filtration, evaporation. Okay.